Dear students, coming to this quality called liveliness. Now, liveliness is a lovely quality, one of the best qualities. The backbenchers, please pay attention. Liveliness is a very, very important quality, one of the best qualities which inspire leadership. Any person who is lively has a magic wand in his hand. जो जिंदा दिल होता है उसके हाथ में एक जादुई छड़ी होती है. वो जादुई छड़ी क्या होती है? जिंदगी सबकी वो प्रेरित करता है. Please do not forget one of the very stalwart examples in Hindu Sanatan theory, that is of Lord Krishna. He always was frivolous, lively. कभी यहाँ कूद रहे, कभी वहाँ कूद रहे, कभी माखन चोरी कर रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे. Full of life, full of dancing, full of enjoyment, full of activity, full of bravery. हमेशा. You know, when you are lively, you bring life to the party, you bring life to the group, you bring life to everything. The moment you walk in with a smiling face, come on guys, how are you feeling today? So this is very important for all of us. Are you all okay? Now this kind of behavior if you show, what happens? Everybody connects. You sit down, good morning everybody, are you feeling good? You don't look lively. You look dry. Nobody is inspired. Remember, everybody puts money on a running horse, but no one puts money on a sleeping horse. ये जिंदगी की सच्चाई है, जीवन की सत्यता है, स्वीकार कर लीजिए. आप किसी के सामने रोएंगे, लोग आपको तिरस्कार कर देंगे, भगा देंगे, मदद नहीं करेंगे. पर अगर आप बहादुर बन के लड़ेंगे तो वो आपके साथ हो जाएंगे. कमाल की दुनिया है. हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि लोगों की मदद करनी चाहिए, दिक्कत में हो तो जरूर करनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है. होता क्या है, जो दौड़ रहा होता है उसके साथ चार और जुड़ जाते हैं. पर्सन हु इज रनिंग थिंग्स, मेनी पीपल अटैच. लुक इनटू योर फैमिली हिस्ट्रीज एंड यू विल फाइंड समबडी हु इज एंजॉयिंग लिटिल सक्सेस by hook or crook, has many people attached to the person, and person who is having tough time is left behind. तो if you are to be a leader, अगर आपको एक नेतृत्व में आना है तो क्या आप रोएंगे? नो. इनमें चारों लोगों ने, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा ने अपनी कहानी, एक दो कहानी में, पर ज्यादातर अपने जज्बे में हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया. दे ऑलवेज इनकरेज्ड. आप विलेज डेवलपमेंट स्टोरी में देखिए, दे हैव इनकरेज्ड द विलेजेस टू कम फॉरवर्ड. दे टॉक टू देम, दे जोक्ड विद देम, दे मेड देम अंडरस्टैंड. जिंदा दिली. द अदर पर्सन हैज ऑल्सो स्पिरिटेड. वो गेम हार रहे थे और गेम जिताने के लिए सबको मोटिवेट किया, लाइवली करा, जिंदा दिल किया. So now these all stories, these two record officers in their game championship also, जिसमें वो सब एरिया में जीते हैं या अन्य चीजों में जीते हैं, they have shown again the same qualities. Motivating is also liveliness. अरे यार क्या परवाह करते हो? Why do you feel so? There is no problem. No, छोड़ो. There are people sometimes who are down. Who inspires them? Father. Who inspires people? Captain. Who inspires people? Positive people. जिंदा दिल आदमी हमेशा दूसरों को दुख से भी बाहर निकालता है और ऊर्जा से भी भर देता है. Remember people talking in speeches, and this to inspire people by their words alone, by their action alone. We have a lovely Pakistan Prime Minister today. Have you ever seen him speak? When he speaks with those mics, he sometimes shakes those whole mics. Now what I want to say is, okay, today we are sitting at different side, so we may feel that, okay, what is he doing? But he tries to inspire people. Let me tell you, and he shakes the whole mic. The present Prime Minister, 2025 of Pakistan, you'll find him. He's a little on the higher side of funniness because he's lively, but he is clumsy also. But he is lively. So now, but he is motivating. Maybe he is motivating the wrong type of terrorist, but he is motivating. Leadership to kar hi raha hai. So we have to learn to be lively, not as funny as him, but somewhere in between. You should have
अब ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में आप लोग जाते हो, स्लोगन बनाते हो, एंड यू डोंट हैव, ओ यार क्या बनाए स्लोगन, एंड यू हैव दैट स्लोगन, यू मेक स्लोगन एंड यू से कम ऑन, लेट्स डू इट, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग while doing the competition speaks of your positivity, your motivation, your zindadili. When you see somebody sad, you make him happy. That is liveliness. So decide while you are writing, it is not your responsibility to show कि आपका हीरो ने ही अच्छा किया, बट हीरो ने अगर किसी को दुखी देखा तो उसको भी जिंदा किया, क्योंकि हीरो आपका जो है, यानी आप जो हैं फौज में आना चाहते हैं तो आप अकेले नहीं, आप अपनी टीम को भी जिताना चाहते हैं, आप अकेले नहीं जीतना चाहते, सबको जिताना चाहते। और ये चीज आपको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, अपने पूरे ग्रुप टास्क में याद रखनी चाहिए। इट इज नॉट योर परफॉर्मेंस अलोन मैटर्स, ट्राई टू इंस्पायर द टीम, एंड द मोमेंट यू डू दैट यू विल गेट लाइवलीनेस एंड पीपल विल बी इंस्पायर्ड विद यू। लाइवलीनेस चेहरे में दिखती है, इट हैज अ मैग्नेटिज्म, एक गजब तरीके का चुंबकीय आकर्षण होता है। जिंदा दिल आदमी कभी भी क्लास में, कभी भी कोई कक्ष में, कभी भी कोई हॉल में आता है, इफ अ पर्सन कम्स, oh my God, the moment he enters, the moment a girl with a cheerfulness enters, the moment with all the charm, her charm multiplies manifold times, उसका जो आकर्षण होता है कई गुना बढ़ जाता है। सो रिमेंबर टू बी चेयरफुल, बी होपफुल। आशाई जीवन है, ट्रक के पीछे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, यस और नो। मैं तो कई बार उन वर्ड्स को पढ़ पढ़ के बहुत कुछ साइकोलॉजिकल वहीं से सीख लेता हूं। परेशान है क्यों, जीतना है तुझे, आज नहीं तो कल जीतना है तुझे, करके पता नहीं कितना सारे लाइनें इंस्पायर करने वाली लिखी रहती है। और यही लाइवलीनेस, आप दूसरे को मोटिवेट करिए, खुद को मोटिवेटेड रखिए, एंड एक्सप्रेस दिस क्वालिटी बाय योर स्टोरीज, वेर यू राइट, वेर यू वॉक इन टू द पीपल। कोई दुखी है आपका दोस्त, आपने स्टोरी में लिखना है तो यू कैन राइट दैट ही वाज हैप्पी, ही वेंट देयर, ही चीयर्ड हिम अप, दे टुक हिम आउट, मेड हिम अंडरस्टैंड, एंड देन दे वर्क टुगेदर इन द टीम एंड कंप्लीटेड इट। कई बार होता है, देयर आर पीपल हु गो इनटू sorrow, but if you are self motivated, which we want, हम चाहते हैं कि लीडर सेल्फ मोटिवेटेड होगा। क्यों? जब उसकी बैटरी में जम के चार्ज होगा तभी तो दूसरों को भी चार्ज देगा, एंड दैट इज द वे इट इज टू बी डन। आई होप इट इज क्लियर। लाइवलीनेस इज योर 12th क्वालिटी। आई होप यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस, and you will learn how to write it and express it in your stories. Thank you very much. Jai Hind.